Okay, we'll understand some terms like double salt and coordination complex. What is the meaning of double salt and what is the meaning of coordination complex? What are the difference between the double salt and coordination complex? There is a question in the textbook, distinguish between double salt and coordination complex. डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको डिस्टिंग्विश करना है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन complex. The example of double salt, here there is a more salt. So now what is double salt? A double salt dissociate in a water completely into simple ions. For example, here as the double salt that we have taken more salt, they are given the example of more salt. So when more salt is dissolved in a water, so it will get completely ionized. मतलब FeSO4 जो होगा स्प्लिट हो जाएगा Fe+2 में, राइट. SO4 जो स्प्लिट हो जाएगा SO4-2 में, NH4 भी स्प्लिट हो जाएगा NH4+ में, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, राइट. सो दैट इज व्हाट अ डबल सॉल्ट. वाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? सो व्हेन वी ionize that coordination complex, ionization of coordination complex or dissociation of coordination complex in a water, that gives two part, one is counter ion and second is complex ion, right. एक आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट देगा, देखिए यहाँ पे K4FeCN6. सो ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है. So it is on dissociation. So when it is dissolved in a water, so we got counter ion and second is complex ion. Complex ion का dissociation नहीं हो रहा है, ध्यान देना. While in the case of double salt में पूरा का पूरा जो salt है वो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट. सो इसमें दूसरा एग्जांपल भी दिया है उन्होंने, कार्नालाइट. तो उस केस में भी अगर आप डबल सॉल्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट दैट KCl.MgCl2.6H2O. After dissociation we get K plus Cl minus Mg plus 2. These are the ions. What is the difference between this double salt and complex compound, or we can say that is a complex coordination complex? Differentiation between double salt and coordination complex. So these are the differentiation point, right. Double salt क्या होता है? They contain two simple salt in equimolar proportion, while in the case of complex compound they contain a complex of salt which may or may not be in equimolar proportion. So these are the simple differentiation point between the double salt and complex compound. As we as just now I told that in case of double salt it is on dissociation in an aqueous solution, so it get dissociate completely into its ion. While complex compound में क्या होगा या coordination complex में क्या होगा, in that case on dissociation in the aqueous solution we get the complex ion, right. सॉल्यूशन में क्या क्या मिल जाएगा आपको, कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयन. कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो डिसोशिएट नहीं होगा, राइट. आपको काउंटर आयन मिलेगा एंड कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, बट द कॉम्प्लेक्स आयन विल नॉट गेट डिसोशिएट इन अ वाटर. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इट इज अ मेजर डिफरेंस, राइट. नेक्स्ट क्या देखो, थर्ड पॉइंट, दे आर आयनिक कंपाउंड एंड कंटेन आयनिक बॉन्ड. जनरली डबल सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होता है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं. So they may or may not be an ionic, but complex part always contain a coordinate bond. जिसमें जो complex होता है, complex pair जो हम लोग बोलते हैं उसको, right, ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर जो complex pairs में जो कोई भी species होते हैं, जो कोई भी entities होती है, they are bonded with the coordinate bond. फोर्थ पॉइंट क्या है, properties of the salt is same as its constituent compound, while here the properties of the compounds are different from its constituent due to the complex formation. Example दिया हुआ है, just go through this differentiation point. So there will be a 2 marks question. So for 2 marks question we require 4 point. तो यहाँ पे 5 एग्जाम पॉइंट दिए हुए मैंने, राइट. तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स. उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन जो था ये हमारा पेंडिंग था, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता क्या है,
कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन करना है हमें. नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा यहाँ पे. तो क्लासिफिकेशन जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगैंड्स, right? Depending upon the types of ligand present in that complex, they are classified into two types. One is homoleptic complex and second is heteroleptic complex. ये this classification, first classification जो है A, that is based on the type of ligand present in the compound, right? आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें कौन सा टाइप का लिगैंड है वो देख के आपको बताना है. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो मीन्स सेम. If a complex contain one and only one type of ligand, means the complexes in which metal ion is bound to only one type of ligand. If you consider this example CONH36, right? यहाँ पे देखो NH3 आपके पास ligand है. There are 6 NH3 but NH3 molecule ही है, दूसरा और कोई नहीं है, right? So this contain only one type of a ligand. So this is an homoleptic. While in the case of heteroleptic complexes, if you check this example, so there are NH3 as well as Cl2. So we have two ligands, two types of ligand. One is NH3 and second is Cl2. Right? Number तो NH3 के 4 है और Cl के 2 है. So according to that, complex in which metal ion is surrounded by more than one type of ligand, you can explain in your own word. ऐसे कोई इसमें specific terminology नहीं रहेगी, but आपको properly explain करना पड़ेगा. जैसे there are two types of मतलब ligands है in these heteroleptic complexes. One is NH3 and second is Cl, which is attached to the central metal atom, that is CO, cobalt. Such complexes in which metal ion is surrounded by more than one type of a ligand, they are called as a heteroleptic complexes. Hetero मतलब different, right? तो ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन. उसी तरह से सेकेंड क्लासिफिकेशन है. सेकेंड क्लासिफिकेशन और इजी, ये भी इजी है, ये ऑलरेडी हमने किया था. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, ऑन दैट बेसिस यू एक्सप्लेन और यू क्लासिफाइड that particular complexes. So classification on the basis of charge on the complex, they are classified into three types: cationic complex, anionic complex and neutral complex. This we already did during the time of nomenclature. मैंने पहले ही आपको nomenclature में पढ़ा दिया था, उसी हिसाब से हमने nomenclature किया था. nomenclature of cationic complex, then anionic complex and neutral complex का, right? So in short, what is cationic complex? Cationic complex पे अगर आप चेक करोगे, एग्जाम्पल देखो, in here there is a +2 charge on the complex, so therefore this is positively charged coordination sphere. So in case of cationic complexes, complex carries positive charge, while anionic sphere there is a negative charge, so complex carries negative charge. That will be your anionic sphere, negatively charged coordination sphere is there. While in the case of neutral complexes or neutral sphere complexes, there is no charge. Complex does not possess any cationic or anionic sphere. मतलब there is no specific charge, मतलब positive और negative charge नहीं रहेगा. That will be a neutral sphere. Understood? तो ये हो गया classification of complex. Right? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. We'll move to the next part, the very important part, that is effective atomic number, EN rule. So this is very simple, right? Now we'll move to the next. Next will be your effective atomic number. तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के पास. ये देखिए EN rule. Question will be like that. Define EN. What is the full form of EN? Effective atomic number, EAN rule, right? Now why we use EN rule? EN rule क्यों use करते हैं? So in early it was an attempt that to explain the stability of coordination compound was made by the Sidgwick, who proposed an empirical rule known as a effective atomic number rule. तो सिडविक ने एक रूल बताया था, वो रूल है EN रूल. According to that,
En rule, we can explain the stability of the coordination compound. That was a first attempt, right? But there are drawback, क्योंकि सबके लिए ये possible नहीं है. Okay, so there are certain limitation. So first we'll understand what is the En rule. The specific formula for En. En rule का formula क्या है? En is equal to z minus x plus y. राइट, सो z माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका En रूल का फॉर्मूला है. बट यहाँ पे En क्या बता रहा है? En इज नथिंग बट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल आयन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो, दूसरा उसमें ऐड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय दी लिगैंड. लिगैंड ने कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, दैट इज नथिंग बट दी En रूल. राइट, तो अभी आपको करना क्या है, उसी को स्प्लिट किया हुआ है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन दैट इज विच En विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल Z minus number of electron lost by the metal to form the ion that is X plus number of electron donated by the ligand. तो ये X Z X Y का डिनोशन है. राइट, तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है. दे विल आस्क द क्वेश्चन, राइट दी कैलकुलेट द En रूल फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा और उसका En रूल आपको कैलकुलेट करना है. तो सिंपल इन दैट केस फर्स्ट यू विल राइट, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट दैट फॉर्मूला. En का फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. राइट, फॉर दिस En के लिए आप z माइनस एक्स प्लस वाई आपको लिखना पड़ेगा. तो जब आप ये लिख लोगे z माइनस एक्स प्लस वाई तो आपको हाफ मार्क मिलेगा. एंड देन वी नीड टू कैरी फॉर द नेक्स्ट. राइट, तो what is Z? Z क्या है इसके अंदर? Z is the atomic number of metal. Right? X क्या होता है? X is equal to number of electron lost by metal to form the ion. मतलब जो कोई भी मेटल एटम रहेगा, राइट, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए. अगर 2 रहेगा तो देखो जनरली पर्टिकुलर मेटल एटम, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट दी इलेक्ट्रॉन, तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, that is X. okay, while Y क्या है, Y is equal to number of electron donated by ligands. इसका मतलब क्या है, Y is equal to number of electron donated by ligand. जितने भी ligands है उसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं वो आपको ऐड करना है. नाउ फॉर द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज गिवन, देन विल सॉल्व द n नंबर्स ऑफ एग्जांपल. राइट, CONH3 plus. Now for this we have to calculate the En rule. Now first calculate the oxidation state of the cobalt. Oxidation state of cobalt आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे. राइट, तो यहाँ पे X is, we are consider oxidation state of cobalt is X. अमोनिया 0 into 6 is equal to +3. तो X कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया है. राइट, तो यहाँ पे X is nothing but the 3. तो यहाँ पे जो आपका मेटल है +3 कब बनेगा, CO when the cobalt metal become +3 when it loses 3 इलेक्ट्रॉन ना. इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल कितना हो गया, 3 हो गया. राइट, सो दैट इज इक्वल टू X. नाउ व्हाट इज Z? Z इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का, विच इज 27. यह आपको पता होना चाहिए. Y क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए. तो वहां पे नाउ हियर इन दिस केस देयर आर 6 NH3 molecules, means we have total 6 ligands. तो अगर 6 ligands है, राइट, तो इनटू 2 मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. राइट, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है. राइट, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अभी आपके पास 6 है तो 6 2 12, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड कितने हो जाएंगे, 12. राइट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू En is equal to Z minus X plus Y.
इस पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, Z था एटॉमिक नंबर 27, X आपको कितना मिला हुआ है 3 माइनस 3 प्लस Y इज नथिंग बट दी total number of electron donated by the ligand which is equal to 12, and if you calculate this value, so we'll get the En that is 36. अभी ये निकाल के आपको क्या पता चलेगा, right? Now according to the Sidgwick, what Sidgwick said, right, the electronic configuration whatever the En rule we got 36, that should be near to the electronic configuration of noble gas. Thus if the En is equal to argon 18 या krypton 36, xenon 54 और Rn 86, then this rule is obey. मतलब क्या है, देखो अभी ये 36 आ गया इसके अंदर, ये 36 आ गया, इसका मतलब क्या है, दिस इज एग्जैक्टली द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन ना, क्रिप्टॉन का 36 है, राइट तो क्रिप्टॉन का 36 है, मतलब ये मैच हो रहा है उसके नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट्स के जैसा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन उसके जैसा बन रहा है, सो दैट मीन्स इट बिकम अ स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है इन दैट केस, बट देयर आर सर्टन केस वेयर वी आर नॉट गेटिंग 36 नहीं मिल रहा है, या 18 नहीं मिलता है, या 54 नहीं मिलेगा, तो उस टाइप पे क्या हो गया, so that is that Sidgwick theory means this effective atomic rule that is not explained in such type of a cases, right? So there is a limitation, drawback for the effective atomic rule to explain the complete stability of the coordination compound. Understood? समझ में आ गया इसमें En rule? तो आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, there will be a question, right? कैलकुलेट द En ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, उसका En रूल आपको कैलकुलेट करना है बस, ठीक है? तो इस तरह से आपको En रूल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नाउ विल गो विद दी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, देखो ये वाला, चलो अभी आप लोग बताए, बहुत बोलिए ना बेटा क्या। यस यस, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, और जो आपका डी ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज आती है ना, हाँ जी बोलिए ना, और कुछ नहीं, जनरली एटॉमिक नंबर गिवन नहीं दिया जाएगा, यू नीड टू रिमेम्बराइज इट, और जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, तो वो ध्यान रखना, जो आपका डीएनए ब्लॉक चैप्टर है, राइट, जो डी सीरीज होती है ना, डी सीरीज, डी ब्लॉक का, डी सीरीज से बोलने से अच्छा, जो डी ब्लॉक का आपका जो 3D सीरीज होती है ना, स्कैंडियम से लेके जेड तक का, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, यस यस यस, राइट, ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। जनरली इसी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं इसी से बनते हैं, और भी है, बट हियर इन दिस केस दे विल नॉट प्रोवाइड द एटॉमिक नंबर, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपको थोड़ा उस पर्टिकुलर केस में याद रखना पड़ेगा, राइट। तो ये रूल तो बहुत इजी है, रूल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बहुत सारे लोग, मतलब मैं बता देता हूँ कि कभी कभी कुछ कोचिंग में और एक रूल का फॉर्मेट होता है, मतलब लिखने वक्त कैसे लिखते हैं, En इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू सी, मतलब Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे भी लिखते हैं, बट वो मीनिंग वही होता है। हाँ, तो आपको कोचिंग में वैसे पढ़ाया रहेगा, मुझे पता है, सुनिए, हाँ तो ध्यान देना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक्चुअली ना वो उससे भी आंसर वही आता है, इससे भी आंसर वही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान दो प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, according to the board paper, board examination, please use the this particular textual format, मतलब ये वाला फॉर्मेट लिखो, En is equal to Z minus X plus Y, right,
आपको कोचिंग देखो आंसर तो वही आता है, कोचिंग में हमने जो आप पढ़ते हो वो क्या, वो ऑलरेडी सीबीएसई लेवल पे वैसा ही दिया हुआ है। en इज इक्वल टू जेड माइनस ओ एन प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। बट वाइल राइटिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन आई वुड सजेस्ट दैट यूज दिस फॉर्मेट, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उन्होंने कहीं पे भी वो फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक आप सर्च करोगे टॉपिक में कहीं पे भी उन्होंने वो फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर होता है। अभी हमें करना क्या है ये तो देखो, ये करना क्या है इसके अंदर, फाइंड आउट द ईएन ऑफ ZnNH342 प्लस कॉमा FeCN6 4 माइनस। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप 1 मिनट भी बहुत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आ गया आंसर? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट आ रहा है। बाकी लोगों ने चेक किया, बाकी लोगों ने चेक किया है। Zn का कितना होगा बताइए एटॉमिक नंबर? हाँ 28 30 क्या चल रहा है यार, 30 ना। हाँ देखो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो पूरा मार्क्स भी चला जाएगा, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना। वो 3D सीरीज जो है ना उसको तो अच्छे से याद रखो। Zn 30 हो गया, x कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको x मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपकी टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन कितने इसने डोनेट किए हुए हैं NH3 ने, पहले के किस में जा रहे हैं हम लोग? हाँ जी, अमोनिया नाइट 8, 4 2 जा 8। फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला मुझे बताइए, अपने लेवल का फॉर्मूला यहाँ पे EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है, विच इज नथिंग बट कोचिंग में आपने पढ़ा रहेगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू CN, मतलब वही हो गया। Z यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है, X तो हमने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, राइट, सेंट्रल मेटल एटम का, और Y जो है आपका डायरेक्टली यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है Y इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड। तो इस हिसाब से वो बनेगा आपका 30 माइनस 2 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 36। सो दिस इज दिस एटॉमिक नंबर ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट दैट इज क्रिप्टॉन 36, बराबर ना। इसका 36 आएगा मतलब वो क्रिप्टॉन 36 के नियर पूरा एग्जैक्ट है, तो दैट मीन्स इट इज अ स्टेबल। सेकेंड बी वाला देखो, इसके केस में कितना आया हुआ है, जल्दी जल्दी, FeCN6 4 माइनस, अभी आपने 36, यहाँ पे Fe का कितना आया एटॉमिक नंबर बताइए? 26, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का, वेरी गुड, तो 26 माइनस 2 हो गया, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 12, यस, कितना 6, राइट, तो ये बन गया 12, तो टोटल हो गया आपका 36, बराबर ना। तो ये भी नियरेस्ट हो गया आपका क्रिप्टॉन। बट अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में जाते हो, यूज योर ब्रेन में, डू द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉलोज द ईएन रूल। देखो CrCO4 ये ईएन रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, हम लोग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर टोटल 4 एग्जाम्पल, 1 2 3 4। अच्छा, ईएन रूल कभी फॉलो होगा? व्हेन द ईएन रूल इज ओबे। हाँ मतलब, यस 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 यस, जब भी आपको जो ईएन रूल का ईएन का टोटल वैल्यू जो मिलेगा विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी नियरेस्ट नोबल गैस, उसके इतना ही रहेगा, तो दैट मीन्स इट फॉलोज एट इट्स ओबे, राइट, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। बट अगर नहीं है तो वो इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल। तो चेक करो, CrCO4 में आ जाइए, अभी ये CrCO4 निकाला रहेगा आप लोगों ने। CrCO4 के केस में कितना आया ईएन, कैलकुलेट किया है? नहीं, कितना कितना? 34, CrCO4 में 34 आया है पक्का? हाँ अभी बराबर बोला आपने, 32। देखो क्या, यस यस, देखो जनरली है ना, बोर्ड एग्जाम में
आपको ये पूछा जाएगा कैलकुलेट द ई एन रूल, पहले ये एक जैसा दिया ए CrCO4, तो उस केस में आपको स्टेबिलिटी नहीं पूछेंगे, तो आपको सिर्फ ई एन रूल कैलकुलेट करना है। तो कितना आएगा वो 32, अगर आपने 34 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला के लिए मार्क्स मिलेगा। सो यू नीड टू राइट दिस फॉर्मूला, राइट। क्रोमियम का कितना एटॉमिक नंबर बेटा, क्रोमियम का कितना है, 24 हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स है, एक्स कितना रहेगा इसके अंदर, कैसे क्या जीरो, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो आपने निकाला है ना। एक्स प्लस 0 × 4 = 0, तो एक्स = 0 हो गया, राइट, बराबर। और फिर आपका y कितना हो गया, देखो क्योंकि यार 0 × 4 बता सकते हो मैंने, ये देखो क्रोमियम, क्रोमियम का, या मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में आप शायद एब्सेंट रहोगे, संडे के लेक्चर में था, इसलिए तो शायद शायद प्रेजेंट थे, आई थिंक सॉरी ना। नहीं, हाँ ये यार चल चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे एक्स किया क्रोमियम का, यहाँ पे 0 × 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 इस का CO ग्रुप है ना। हाँ तो बराबर ना, तो जीरो, नहीं नहीं नहीं, तो 0 × 4 तो ये बनेगा आपका, और इक्वल टू 0 है तो 0 बन गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया है। ओके, प्लस y कितना मिला मिला था आपको 8 ना, यस। तो 24 + 8 कितना हो जाएगा 32, तो नाउ विच इज इक्वल टू 32 मिल गया, इसके केस में 32 हुआ है ना, CrCO4, सो 32 इज नॉट नियरर टू एनी, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द नियरेस्ट नोबल गैस और नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट, राइट ना। तो इट इज नॉट फॉलोइंग दिस ई एन रूल एक्चुअली देखा गया तो, राइट। तो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द ई एन रूल, यू हैव टू कैलकुलेट द ई एन रूल। उसी तरह से NiCO4 के केस में जाते हो तो निकल का एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है, हाँ, तो ये क्या होगा, NiCO4 फॉलो कर रहा है, पहला वाला तो फॉलो नहीं किया, तो ये फॉलो कर रहा है क्योंकि इसका 36 आ गया। MnCO5 के केस में कित, कितना आ रहा है, 35 आ रहा है पक्का, 25 है Mn का, 25 माइनस 0 प्लस इतने 5 है ना यहाँ पे, 5 × 2 = 10, तो 25 + 10 35 हो गया, तो ये 35 आ गया इसके केस में, राइट ना। तो 35 तो ये भी नहीं फॉलो करेगा। उसके बाद लास्ट वाला देखो FeCO5 36, तो ये ओबे कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो इसका, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से क्या होगा कि दैट ए वाला CR मतलब फर्स्ट CrCO4 एंड थर्ड वाला MnCO5 डू नॉट फॉलो द EN रूल, बराबर ना, ये दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बाकी जो है दोनों फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट सिंपली द EN रूल। सो आई थिंक नो डाउट इन एनी EN रूल, कुछ डाउट है इसके अंदर EN रूल में, यस बोलिए प्लीज। हाँ, ये इसने बोला है, किसने, सिडविक ने बोला है, ये ड्रॉबैक है, उसमें ड्रॉबैक है, लेकिन ये ड्रॉबैक हो अभी हमें पता चल गया। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या है, यस यस। तो डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू EN रूल से पूछा है या फिर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा है, या नहीं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा EN रूल, तो नियरेस्ट नियरेस्ट अगर नहीं आ रहा है तो नहीं रहेगा। और स्टेबिलिटी के लिए अलग से क्वेश्चन है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अलग से एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आपको अलग से पढ़ना है आफ्टर दी दैट आइसोमेरिज्म, राइट। तो इसमें ड्रॉबैक है, इसलिए तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा नीड इज अराइजेस फॉर न्यू फॉर्मेट। सो देर इज अ स्पेसिफिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट कंप्लीटली डिपेंड, अलग है वो हम लोग बात इसके बाद में पढ़ लेंगे, बट अभी फिलहाल तो EN रूल के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, राइट। तो देर इज अ, तो नहीं होता है, यस, तो इट इज नॉट अ स्टेबल,
अगर ये इट इज नॉट, नहीं अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, इट डज नॉट फॉलो द ईएन, इट डज नॉट ओबे द ईएन रूल, राइट। देखो कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इन सिंपल, ईएन रूल देखो मींस इट वाज अ प्रायर अटेम्प्ट taken by the Sidgwick, right, who proposed an empirical rule known as a effective atomic number rule. Okay, सुनिए सुनिए उसके बाद, according to him, an early attempt to explain the stability of coordination compound that was made by the Sidgwick. Okay, so En equals total number of electron around the central metal ion in the complex, and En rule state that a metal ion continues to accept electron pairs till it attains the electronic configuration of the next noble gas, right. तो वो इतना मतलब इलेक्ट्रॉन, En rule state that metal ion continues to accept, मतलब वो metal ion accept कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तब तक एक्सपेक्ट करेगा जब तक वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा है। तो द इसलिए ये रूल रहा, बट उसमें ड्रॉबैक भी आ रहे थे। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स तो, अगर कॉम्प्लेक्स है पर्टिकुलर कंपाउंड है तो स्टेबल तो बनेगा ना फिर, राइट। तो धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। तो आपको अभी इस लेवल पे, यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देगा टू कैलकुलेट दी EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, या सो या धीरे धीरे जब से स्टेबिलिटी का पॉइंट आगे है बहुत अलग से है, तो उसमें आप आपको और क्लियर हो जाएगा। कर क्वेश्चन ट्राई करना है, ये किया ना क्वेश्चन ट्राई हमने। अभी मैं एक काम करता हूँ ना, आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, चलो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा एक क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। हाँ, ट्राई करो फटाफट से। नहीं सीओ तो अभी बहुत हो गया, सीओ को हटा देते, सीओ को। Zn NH3, Zn NH3 4, देन 2 प्लस ले लेते हैं। चलो फटाफट से निकालो इसका EN रूल, निकाल के बता दीजिए फटाफट। 36 नहीं, मुझे वो Z माइनस एक्स प्लस वाई वाला बता दीजिए बराबर से। देखो यहाँ पे, हाँ ध्यान देना, आप अगर एग्जाम में पूछा तो कैसे लिखोगे आप, आई विल राइट लाइक दैट, EN इज इक्वल टू, कंपल्सरी यू नीड टू दिस राइट द फॉर्मूला Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये कंपल्सरी लिखना है। बाद में डायरेक्टली आप डाल सकते हो। Z कितना है इसका, कितना है 30 ना, ठीक है वेरी गुड। माइनस 2 प्लस 8 हो गया, तो ये कितना आ गया 36। तो ये नियर अबाउट क्रिप्टॉन के पास चला गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, डिफाइन पूछा है तो ही लिखना है, डिफाइन तो नहीं पूछा है। कैलकुलेट द EN रूल तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ये Z माइनस एक्स प्लस वाई डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दीजिए, और आसपास ही मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, तो 36 है। हाँ ठीक है, अभी और एक ले लेते हैं, चलो। हाँ जी।